ਜਾ ਪੈਣ ਜਾਵਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਾਵਿਆ نہ صرف یہ کہ ورثہ کا پتہ چلا بلکہ ان کے نام کا بھی پتہ چلا کہ ماشاءاللہ محمد شعبان ان کا نام ہے۔ رجب کے مہینے میں شعبان اپنے پیاروں سے ملنے جا رہا ہے۔ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾੜਿਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਦੀ جی ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ الحمدللہ۔ بھائی ہے اور شام کو نا ہمارے گاؤں کے لوگوں نے شور مچایا کہ ہمارے گاؤں میں نا ایک چور گھس آیا ہے۔ سرسوں کا سیزن تھا تو سرسوں میں انہوں نے اس کو نکالا اور اس کا بڑا برا حال تھا۔ جب اس سے بات کی تو یہ بول نہیں سکتا تھا، سن نہیں سکتا تھا، تو یہ اس وقت اتنا اس کا برا حال تھا نا کہ اس نے کم از کم ایک جگ پانی کا پیا ہوگا اور 4-5 روٹیاں اس نے کھائی ہوں گی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے۔ آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں پنجاب کے شہر ہارون آباد میں موجود ہوں۔ چند روز قبل ہارون آباد سے ہمیں ایک کیس موصول ہوا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ یہاں پر ایک نوجوان سال 2014 میں اپنے پیاروں سے بچھڑ کر آیا تھا اور قوت سماعت اور گویائی سے محروم ہونے کی وجہ سے وہ یہاں کے مقامی لوگوں کو اپنا ایڈریس اور اپنی معلومات بتانے سے قاصر تھا۔ تو لوگوں نے بہت کوشش کی، ہم یہاں کے مقامی افراد سے بات کریں گے، وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کوششیں کی اور لیکن ورثہ نہیں ملے۔ اس کے بعد یہاں پر ان کو یہاں کے مقامی لوگوں نے اپنے پاس رکھا اور 12-13 سال انہوں نے ایسے گزارے جیسے کہ کوئی اپنے گھر میں رہتا ہے۔ پھر ہم سے ایک بھائی نے، محمد حسنین بھائی نے رابطہ کیا تھا اور ان کی تصویر دی اور بتایا کہ یہ نوجوان 2014 میں ہمارے علاقے میں آیا تھا اور بات نہیں کر سکتا اور نہ سن سکتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے پلیٹ فارم پر اس کے ورثاء کو تلاش کریں۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنے پیج پر ان کی تصویر لگائی، 6 سے 7 گھنٹوں کے اندر اندر ان کے ورثاء مل گئے۔ ان کی رہائش وہاڑی کے قریب کچھ فاصلے پر ایک گاؤں ہے لڈن، وہاں کے یہ رہائشی نکلے اور انہوں نے اپنے ورثاء کو پہچان لیا، اپنی والدہ کی تصویر، اپنے والد کی تصویر، اپنے بھائی کو، اور ان کا شناختی کارڈ بھی بنا ہوا تھا اور شناختی کارڈ کی تصویر بھی بھیجی۔ تو الحمدللہ یہ کیس ویریفائی ہو چکا ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارا بیٹا سال 2010 میں گھر سے نکلا تھا، لیکن شاید 2-3 سال کہیں اور رہا ہوگا، اس کے بعد اس علاقے میں پہنچا ہوگا۔ تو آج ہمیں پھر یہ پتہ چلا کہ ان کا جو نام ہے، یہاں پر کسی کو نام بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ کون ہے، کہاں سے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے توسط سے نہ ان کے ورثاء کا پتہ چلا، نہ صرف یہ کہ ورثاء کا پتہ چلا بلکہ ان کے نام کا بھی پتہ چلا کہ ماشاءاللہ محمد شعبان ان کا نام ہے۔ اور رجب کے مہینے میں شعبان اپنے پیاروں سے ملنے جا رہا ہے۔ ان کی والدہ قریب ہے، راستے میں ہیں، ان کے بھائی، اور انشاءاللہ بہت جلد ان کی ملاقات ہوگی۔ آپ تمام دوست ہمارے ساتھ رہیں، ہم بہت جلد ان کی ملاقات ان کے پیاروں سے کروا رہے ہیں۔ یہ تمام مناظر دیکھیے، پھر ہم آگے کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ گونگا بھائی کون سے ہیں ان کا؟ گونگا بھائی کون سے؟ آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ اچھا ماں جی کو آگے لیں۔ میں گونگا ਜਾ ਪੈਣ ਜਾਵਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਾਵਿਆ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਵੈਦਾ ਨਾ ਘਰੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੰਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਕਰ ਸਟਿਆ ਪਿਓ ਹੀ ਗਿਆ ਬਿਰਾ ਹੀ ਗਿਆ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹ ਗਈ ਕਚਨਾ سائیاں نو میڑا آپ کیا لگتے ہیں کہ
हमसाया सर। हमसाया। हाँ जी। हम अपने बेटे को पहचाना आपने? जी यही है? जी है कोई शक शुबा तो नहीं रहता? कोई शक शुबा नहीं जी ये क्या लगता है? आंदरा बला हटदियां अंदर खून नहीं रुकदा हुंदा ये भाई है आपने छोटा पहचाना इसको? वो जो कह रहे थे गूंगा भाई को? ये गूंगे नहीं, क्या दूसरा भाई गूंगा बोल रहे थे? नहीं अच्छा नहीं नहीं ये ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ अम्मी को ਜੀ पहचाना? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ हाँ? ਪੀਰ ਹੈ अम्मी ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ पहचाना आपने? ये कौन है? इनका आपके पास क्या क्या है इनका? ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? हाँ जी। ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਬੂ ਪਿਓ ਦਾ- ਦੀ ਇਸ। ਅੱਬਾ आप बस बस ये सेव हो जाएगी। ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ सिंगाल नहीं है इसको। ਪਤਾ ये ਸੂ पहले मेरे को काम करता है उत्थे अच्छा क्या काम करते थे ये? जी, जानवरों के माल काम ये आपके साथ थे? हाँ जी। अच्छा, ये कैसे निकले मतलब कुछ पता है? ये सर जी उत्थों ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾ ਅੱਛਾ। ਲੁੱਡਣ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਇਆ अच्छा ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਬਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਤੇ ਨਾ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाँ जी। बड़ा अल्लाह ताला दा ਇਹ ਗਰੀਬ ਹਨ ਸ਼ੋਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲਾਇਆ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ वेले हो गए जी वेले हो गए कैसे इसके पीछे बेचे सब कुछ इसके पीछे बेचे हैं। ढूंढने के लिए? जी ये नहीं मिला आपको? नहीं मिला सानू इसका अब्बू इसका भाई? भाई भी ਹੁਣ ਇੰਤਕਾਲ ਪਾ ਗਏ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ अच्छा ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਮਗਰ ਵੇਚ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਕੁਛ ਲੱਭਿਆ ਸਾਰਾ ਖਪਾਇਆ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਥੀ ਪੱਲੀ ਨਹੀਂ ਛਾਇਆ अच्छा जी ये इन भाइयों की मेहरबानी जिन्होंने इनको जी, अब बेटे बात बड़े करते इंसान हैं है इन्होंने साथ अपने देते अपने बेटे जैसे रखा सबने सब और ये ने, हमारे जी। ये हसनैन भाई हैं जी। इन्होंने जो है ना हमें इसकी तस्वीर भेजी हमने जी, अपने चैनल जी, पे डाली जी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इन्होंने रब्ता इंसान किया है हमसे ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। कितने साल हो गए अम्मा ये बेटे को गुम हुए? ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ 14 ਅਗਸਤ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਚ ਉਦੋਂ ਜੀ ਇਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा 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 ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਐਦੂ ਆਵੇ ਕੋਈ ਐਦੂ ਆਵੇ ਮੈਂ ਨਿਮਾਸ਼ੀ ਘਰ ਜਾਵਾਂ अच्छा ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ भाई भी इसके गम में फोत हुआ? ਫੌਤ ਹੁਆ ਅੱਬੂ ਆਈ ਏਦਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਿਹਾ अच्छा ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਪ ਗਿਆ ਗਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖੀ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾੜਿਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਦੀ जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ अल्हम्दुलिल्लाह ਭਾਈ ਹੈ अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰदगी करे आमीन 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 रब जिन ਤੁਹਾਨੂੰ लोगों ने मदद की ना भाई ने ये रखा हसनैन भाई तो हैं जी, हसनैन भाई उन्होंने हैं भी अल्लाह और ये जिंदगी नंबरदार देवे, साहब उन्होंने आपका बच्चियां को- अब्दुल अजीज साहब जी। हैं और ये सब हैं इन सब ने आपके बेटे को अपने घर में अपने बच्चों जैसे रखा जी अल्लाह आप बैठ जाए हम बात करते हैं करे बैठ जाए ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ आमीन 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 ਤੇ तो ਇਹਨਾਂ अम्मा ये ਸਾਡੇ ਤੇ आपको हिसान ਕੀਤਾ आपका बेटा आपको याद आता था इतने 14 साल कैसे 12 साल कैसे गुजारे आपने? जी आपने रो के गुजारे हैं रो के जिंदगी गुजारी है और कैसे गुजारनी है पुत अभी ले जाएंगे इसको साथ? जी ले जा मैं साथ लेने के लिए आई हूँ और छोड़ने के लिए तो अच्छा नहीं जी। आई। चलिए आप सबको बहुत मुबारक हो आपको मुबारक हो आप सबको बहुत मुबारक हो खैर जी मुबारक आप सबको मुबारक हो जी जी नाजरीन 11 जनवरी 2026 वो नौजवान जो साल 2014 में
अगस्त के महीने में अपने घर से लापता हुआ था और क़ुव्वत समाअत और गोयाई से महरूम था, जिनका नाम आज हमें जाके पता चला है मोहम्मद शाबान। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अपनी वालदा से, अपने भाई से मिल चुके हैं। इनकी वालदा क्या कहती हैं हम इनसे बात करेंगे, और हम तक ये पोस्ट कैसे पहुंची हम वो बात करेंगे, और जिन्होंने मोहम्मद शाबान को अपने पास रखा, अपने घर का फ़र्द बनाकर रखा, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं मोहम्मद हसनैन भाई से गुफ्तगू करूँगा, वो नौजवान जिन्होंने हमें ये केस दिया, जिन्होंने हमें तस्वीर भेजी और बताया कि इस तरह नौजवान हारून आबाद में मौजूद है, और अपनी 2014 की फ़ेसबुक पोस्ट की स्क्रीनशॉट भी उन्होंने हमें भेजी, अपनी कोशिशों के बारे में बताया कि हमने बहुत कोशिश की, इस नौजवान के वर्सा नहीं मिले, और हमने जब पोस्ट लगाई अल्हम्दुलिल्लाह 6 घंटे बाद आप तमाम दोस्तों की सपोर्ट से 12 सालों से लापता, गुमशुदा लख्त जिगर अपने माँ को मिल गया। मैं मोहम्मद हसनैन भाई से गुफ्तगू करूँगा। हसनैन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें केस दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से आज ये नौजवान अपनी माँ के बिल्कुल बराबर में बैठा है। आप ज़रा स्टोरी सुनाएं, कब से आप इनको जानते थे, आपने क्या क्या किया और हम तक कैसे आप पहुँचे? सर 2014 में ये हमारे पास आया, मेरे अंकल लोग हैं उनके पास आया है, तो फिर हमने इसको नादरा दफ्तर लेके गए, वहाँ भी इसका थंब लगाया, लेकिन इसका कोई सोर्स नहीं निकला। फिर ऐसा 2014 में मैंने अपने फेसबुक पेज पे इसकी तस्वीर लगाई है, वो सारी तफसीलात लिखी है। फिर हमारे हारूनाबाद के लोगों ने, सारे लोगों ने शेयर किया है, लेकिन फिर भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। फिर उसके बाद मैं उस टाइम कॉलेज में पढ़ता था, तो फिर हमने काफ़ी सारे पफलेट बनवाए, इश्तहार बनवाए, फिर मैंने कॉलेजों में लगाए, स्कूलों में लगाए और बसों के पीछे लगाए, बहुत हमने एडवर्टाइजमेंट की। फिर चिश्तियाँ तक हम इसे सफ़र पे बसों पे गए, व चिश्तियाँ शहर गए, हम बहावल नगर गए, वहाँ भी हमने पोस्टर वगैरह लगाए, लेकिन हमें कोई इसका सुराख नहीं मिला। तो इसके कोशिश फिर हम ऐसा ऐसा करते रहे। फिर मुझे एक दिन आपका वलीउल्लाह साहब का आपका चैनल, मेरे वो जो आसफ़ वाला आपने केस किया था जर्मनी वाला, वो मेरी नज़र से गुजरा, मैंने फिर आपको फॉलो किया। मैंने आपको काफ़ी देर से ही देख रहा था ना, लेकिन उस वीडियो में मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग केस वो लगा। तो देखते देखते फिर मैंने, साल तो हो गया मेरा ख्याल है, मैं आपसे भी रब्ता कर रहा हूँ, तो फिर आपका वो रब्ता नहीं हुआ। फिर एक दिन रात को मैंने आपसे रब्ता किया, तो आपने क्विकली मुझे रिस्पांस दिया है। उस रिस्पांस के साथ फिर हमारा बहुत अच्छा रब्ता हो गया। फिर आप वक्तन फ़क्तन मेरे साथ रब्ते में लिए, फिर आपने इसको बहुत हैंडल किया है, और आप फिर मुसलसल मेरे साथ रब्ते में रहे हैं, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है। फिर बारहा अभी तक स्टिल आप हारूनाबाद पहुँचते तक मेरे साथ बार बार रब्ते में रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने आपसे बहुत बड़ा काम लिया है। आपने बहुत ज़्यादा मुशक्क़त बर्दाश्त की। सुबह सवेरे मुझे लेने आए अड्डे पे, सख्त सर्दी थी, और मोहम्मद हसनैन भाई जैसे नौजवान हम सब के लिए, तमाम नौजवानों के लिए एक मिसाल है कि इंसान एक कदम उठाएं। तो उनकी वजह से इन्होंने कोशिश जारी की, हार नहीं मानी, और 2014 से जिस चीज़ के पीछे पड़े अल्हम्दुलिल्लाह आज जाकर इनका वो मिशन कामयाब हो, और अल्लाह ताला ने हमारे ज़रिए मिलाना था, और यहाँ इनका रिज़्क़ आज तक लिखा था शायद, इसलिए अल्लाह ताला ने आज इनको इनके वालिदैन से मिलवाया। मैं अब्दुल अज़ीज़ साहिब से गुफ्तगू करूँगा और उनसे मैं तफसीलात पूछूँगा कि ये नौजवान किस हाल में यहाँ पाया गया, कैसे इनको मिला, और कैसे ये 12 साल इन्होंने गुजारे। अब्दुल अज़ीज़ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने इस नौजवान को अपने बच्चों जैसे रखा। ज़रा नाज़रीन सुनना चाहते हैं ये सब चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात है कि मैं नंबरदार हूँ, और शाम को ना हमारे गांव के लोगों ने शोर मचाया कि हमारे गांव में ना एक चोर घुस आया है। सरसों का सीज़न था, तो सरसों में उन्होंने इसको निकाला, और इसका बड़ा बुरा हाल था। ये हमारे पास आया, हमने इसको देखा, तो मेरे अंकल थे, वो उनकी अब डेथ हो गई है, उन्होंने ये देखा कि ये चोर नहीं लगता। इसको लोगों को बताया कि ये ना कहीं से भाग के आया है। जब इससे बात की तो ये बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था। तो ये उस वक्त इतना इसका बुरा हाल था ना कि इसने कम से कम 1 जग पानी का पिया होगा, और 4-5 रोटियां इसने खाई होंगी। तो रात को सारी रात ये सोया रहा, और इसने एक जो है ना ऊपर गलाफ रज़ाई वो भी नहीं हिलाई। सुबह उठा, फिर हमारे पास इसी तरह रहता रहा। हमने इसको वरसात तक पहुँचाने की बड़ी कोशिश की, हमने इश्तिहार लगाए, आस पास ये बताता था जैसे इशारों के साथ, तो उसको साथ ले के गए डारा वाले की तरफ, इधर फोटाबाज की तरफ, तो कहीं से इसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर
फिर हमने मेरा ये हसनैन कज़न है, इसको बताया, इसने फेसबुक पे लगाया। और मेरा एक कज़न है प्रोफेसर, उसने नादरा पे लेके गया, उसने इसका बायोमेट्रिक करवाई, लेकिन इसका भी कोई सुराग वहाँ पे नहीं मिला। तो अब हमने हसनैन भाई ने और आप लोगों ने बड़ी मेहनत की और अब इसके वर्षा मिल गए हैं। हमें बड़ी खुशी हुई है कि ये चलो अभी अपने वालिदैन से मिल गया है। हमने इसे अपने भाइयों की तरह पाला है, हमने इसमें कोई फ़र्क नहीं रखा कि ये बाहर से आया हुआ है, हमने अपने फैमिली की तरह इसको अपने साथ रखा। अच्छा, आपके घर के साथ किस तरह टाइम गुजरा? वो स्टोरी जो आप हमें पहले बता रहे थे कि आपके जो इख्तियारात इनके पास थे। ये बिल्कुल फुल फ्लैज था। ये हमें हमारे जो काम है ना वो ज़िम्मेदारी का है। ये हमारे गांव में जब हम कोई जानवर बेचते थे तो वो पैसे अपने पास रखता था। इसके पास हमने ना, जैसे दूसरे मेरे भाई हैं ना, इन्हीं के साथ भी वैसा ही सलूक था। हमें अगर कोई ज़्यादती करता था ना, हम भी आपस में कोई बात करते थे तो ये हमें समझाता था कैसे नहीं करना। ये हमारा एक एज ए फैमिली मेम्बर है। हमें बड़ी ये खुशी हुई है कि ये अपने वालिदैन को मिल गया है और हमें इसके बात का बड़ा दुख है कि ये हमारा भाइयों की तरह है और हमसे ये अब जा रहा है। ये मेरा भाई जो हमारे अंकल थे ना, वो हमें इसकी बार बार यही कहते रहते कि मेरे बाद इसके इसी तरह ख्याल रखना कि जिस तरह आप बाकी लोग हैं। अब मेरे अंकल ने इनको संभाला था, जी वो अजीज दुनिया से साहब रुखसत हो चुके वो हैं। दुनिया से अल्लाह रुखसत। करे कि ये काम उनके लिए सदका जारिया बने, अल्लाह उनके आखिरत की कामयाबी के ज़रिए बनाए। जी नाज़रीन, जिस तरह के हम आपको दिखाते हैं मनाजिर कि फ़लान ने फ़लान के बच्चे को अगवा किया, फ़लान ने फ़लान को जुदा किया, फ़लान ने फ़लान को उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, लेकिन इसी तरह हम जब अच्छाई देखते हैं, अच्छे लोग देखते हैं, तो हम उनसे भी आपको मिलाते हैं। जिस तरह के अब्दुल अज़ीज़ साहब हैं, यहाँ के नंबरदार साहब, इन्होंने स्टोरी बताई कि एक लावारिस शख्स उनको जब मिला तो कैसे उन्होंने अपने घर के फ़र्द जैसा बनाया और घर के यहाँ तक कि बताया कि ट्रैक्टर और गाड़ियाँ जो थी उनकी चाबियाँ भी इनके पास होती थी। लोग इनसे इजाज़त लेके, हालांकि चला नहीं सकते थे, हर चीज़ इनकी मर्ज़ी से होती थी। इनके जानवर अगर ख़रीद फ़रोख्त होता था, इनकी मर्ज़ी से होती थी सारी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज खैर आफ़ियत से ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ और ये तमाम जी 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 ये ना सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ये बेशक गांव के लोग बैठे हुए हैं, ये इनसे पूछ लें कि हमने इसके साथ कैसा रवैया रखा, ये कैसे, ये लोग भी बताएंगे। आप भाई। हाँ जी, मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी फैमिली अमान फैमिली है, तो हमने इसे बाकायदा एक नाम दिया है क्योंकि इसका नाम हमें नहीं पता था। अच्छा। तो मलक बशीर के नाम से हम इसको बुलाते थे। अच्छा, तो देखें, ये ऐसे नहीं कि इसको हम गुंगा कहते थे, एक नाम दिया है और इसकी केयर बिल्कुल एक भाइयों जैसे की है। पूरा फुल फ्लैज उसको काम दिया है। ये नहीं कि इसको खाना पीना हमारे साथ ही होता था, ऐसा नहीं होता था कि अलहदा हमने इसको एक छोड़ दिया नौकर की तरह, ऐसा नहीं होता। जी नाज़रीन, देखें, हम इस तरह का गूंगा बहरा क़ुव्वत समाज से महरूम, क़ुव्वत गोयाई से महरूम को माशरे में एक अजीब सा नाम रखा जाता है जो बुरा माना जाता है। जिस तरह मैंने अभी गूंगा कहा तो आप सुन को आपको बुरा लगा होगा, तो इसी तरह इन्होंने इनकी अच्छाई का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के सामने तारीफ़ करने से मना किया है, लेकिन मैं बतौर एक तालीम के आप तमाम दोस्तों से ये बात शेयर करूँगा कि इस तरह हम लोग इस रवैया कैसे रखें। इन्होंने बजाय कि कोई गूंगा या बजाय किसी और तरह के अल्फाज के अपने कौम का मलिक, आवाम कौम है तो इन्होंने मलिक बशीर उनका नाम रखा, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी मिसाल है। अब मैं गांव के एक दीगर मुआज़्ज़िज़ शख्सियत मलिक रियाज साहब से गुफ्तगू करूँगा। उनसे पूछूँगा कि शाबान भाई ने इनके साथ ये 12 साल कैसे गुजारे और इनके साथ इनकी कैसी दोस्ती थी, और ये गवाही भी दें कि यहाँ के लोगों ने इनके साथ किस तरह रवैया रखा। जी मलिक रियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो जी आपका शुक्रिया कि आपने इतनी मेहनत की और इसको अपने वालिदैन से मिलाया। बाकी जहाँ तक इसका तल्लक है मलिक अज़ीज़ और वगैरह के साथ, इन्होंने इसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया है और भाइयों की तरह रखा है। बहुत अरसा हो गया ऐसे, जैसे वो बता रहे थे वैसे ही बिल्कुल ये आया था रात को ना, लोग कोई ले आए थे कि ये चोर है, और फिर इनका अंकल थे इनके बड़े जो मलिक सुल्तान खान नंबरदार, उनके पास ये आए थे और इनका टाइम काफ़ी अच्छा गुजरा है यहाँ। इन्होंने बहुत प्यार से इसे रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी आपकी ये काविश है और हसनैन की कि इन्होंने ये सारा प्रोसेस करके इन्हें अपने वालिदैन से मिला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा जान, आप बताएं कि आज किस तरह लग रहा है आपको इतने सालों बाद? बड़ा अच्छा लग रहा। खुश हैं आप? खुशियाँ, बहुत खुशियाँ हैं जी। इतने 4-5 दिन लगे मिलाने में, ज़रा देर हुई कराची से आते हुए हमें जी। तो मैं कराची से आया हूँ आपके बेटे को मिलाने जी। तो ये 4-5 दिन कैसे गुजरे आपके? बड़े औखे गुजरे। अच्छा जी, मैं आखा भी इस टाइम में जावा जेड़े भाई गली है ना तस्वीर जी
मिनट मारा पहुंच जावा आपके बेटे को अच्छा, जी अब ले जाएंगे इसको अपने घर जी रखेंगे? लाए जैसा घर रख साहब को ये बात तो नहीं कर सकेंगे? खुश बात हो? नहीं कर सकता। खुश हो आप? जाओगे अम्मा के साथ? हाँ, ये कह रहे मैं जाऊँगा। और ये अपनी तस्वीर देख के 2-3 दिनों से यहाँ पर लोगों से भी ये कहता आ रहा था कि मम्मा या मम्मी, इस तरह कुछ अल्फाज ये कह रहा था कि मेरी अम्मी आ रही, मैं इनके साथ जाऊँगा। तो नाजरीन, ये आज हमारा बहुत खूबसूरत और शानदार केस था। एक नौजवान जो 1 दहाई से ज़ायद अरसे तक अपने प्यारों से दूर रहा, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आप सब की मदद से और हमारे प्लेटफॉर्म की मदद से अपने प्यारों से मिला है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये केस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और हम इस तरह मज़ीद लोगों को उनके प्यारों से मिलाते रहेंगे। आप तमाम दोस्तों से जाते जाते हम ये दरख्वास्त करेंगे कि इस तरह के कहीं पर भी मुल्क के, दुनिया के किसी भी कोने में कोई शख्स अपने प्यारों से बिछड़ा हो, जो लावारिस हो, उसको अपने प्यारों की तलाश हो या कोई गुम हुआ हो, तो हमसे आप ज़रूर रब्ता करें। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहाँ फ़ोन नंबर मौजूद है, ईमेल मौजूद है। हमसे रब्ता इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानी के साथ होगा। बहुत जल्द हम एक और वीडियो के साथ आकर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। जी नाज़रीन, जिस तरह के आपने इनके जो पड़ोसी हैं सैयद ताहिर हुसैन शाह साहब ने बताया इनके हालात के बारे में, वालिदा ने बताया कि इस बेटे की तलाश में, इनके गम में इनको अपनी सारी चीज़ें बेचना पड़ी। अपने जानवर और जो चीज़ें बेचने के काबिल थी उन्होंने बेची। इनका वालिद इस बेटे के गम में दुनिया से रुखसत हुआ। इनका भाई इनकी तलाश में और इनको ढूंढता हुआ दुनिया से रुखसत हुआ और ये खातून बिल्कुल तन्हा रह गई। इनका एक ही बेटा है और इनके बारे में जब हमने पोस्ट लगाई थी तो लुडन से जितने भी दोस्तों ने रब्ता किए, सब के मुंह पर एक ही लफ्ज़ था कि इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये ख़ुद नहीं आ सकेंगे, आपको ख़ुद आना पड़ेगा। तो हम डीसी साहब जो विहाड़ी के हैं, खालिद साहब, उन्होंने कॉल की थी। हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने इनके साथ हर मुमकिन ताउन का कहा है और इनके घर का एड्रेस हमसे लिया है, वो एसी साहब को भेजेंगे और इंशाल्लाह वो भी अपनी तरफ से जितना हो सकेगा करेंगे। इस वक्त हम 25,000 रुपये बतौर गिफ्ट हम अम्मा जान को देंगे, जो अभी जब ये जाएंगे बहुत सारे इनके मुतल्लिक़ीन मुंतज़िर हैं, वो मुबारकबाद देने के लिए आएंगे ताकि उनके लिए चाय खाने का या इनका बेटा जब जाए कि तो शुरू का 1 हफ़्ता इनका अच्छा गुजरे। अम्मा जान ये लें, ये आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है? आप अपने बेटे का ख्याल करें और इंशाल्लाह ये भी जब वहाँ आके सेटल होगा तो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल करेगा, इंशाल्लाह आपकी खिदमत करेगा। ठीक है जी, आपको बहुत मुबारक हो और खुश रहें इंशाल्लाह। अल्लाह आपको इतनी दूरी थी ना, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, इसका बदला आखिरत में मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह जन्नत की सूरत में इसका बदला देगा आपको।